اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے قرآن احباب۔ آج ہم آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے کا دوسرا سبق کریں گے انشاءاللہ۔ جی قرآن پاک میں ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کے معنی جیسے کہ ہم پچھلی کلاس میں دیکھ چکے، اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معانی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، جبکہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ حروف تہجی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ۔ کون سے حروف کہاں سے ادا ہوں گے، یہ آپ کے سامنے حروف تہجی کی سلائیڈ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ اس کو آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے۔ تو اس کو ہم ان کے مخارج سیکھیں گے۔ الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نا اپنی نماز کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سورہ فاتحہ نماز میں، چونکہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو پہلی ترجیح ہماری ہوگی کہ ہماری سورہ فاتحہ جو ہے وہ درست ہو جائے، ہمیں پڑھنا اچھے طریقے سے آ جائے۔ پچھلے سبق میں جو ہے نا سورہ فاتحہ ہم نے اپنے جو ہے نا وہ اسائنمنٹ میں شامل تھی۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جنہوں نے سنایا ہے سورہ فاتحہ کا سبق، اپنی آڈیوز بھیجی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہترین اور بہت اچھے طریقے سے، بہت ذوق و شوق کے ساتھ بہت سے اسٹوڈنٹس نے سنائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور بہترین طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک دفعہ میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ مزید کریکشن ہو جائے ہماری۔ دوسرا شیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب ہم مخارج دیکھیں گے۔ مخارج کیا ہوتے ہیں؟ مخارج مخرج کی جمع ہے مخارج۔ مخرج کی تعریف کیا ہے؟ جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی منہ کے جس حصے سے حرف کی آواز نکلتی ہے اس کو
आवाज के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। मखारिज की कुल तादाद जो है वो 17 है, जिनकी मुख्तसर सी तफसील हम आइंदा स्लाइड्स में सीखेंगे इंशाल्लाह। ये आपके सामने जो है मखारिज का एक जो हमारा मुंह है उसके नक्शा बना हुआ है। इस पे आप परेशान ना हो कि ये इतना कुछ है, ये इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आप ज़ौक़ और शौक़ के साथ इंशाल्लाह इसको अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको आता जाएगा। तो पहला मखरज जो है यानी निकलने की जो जगह है, हरूफ के निकलने की जगह, वो हम आज देखेंगे जौफ। जौफ किसको कहते हैं? ये आपके सामने स्लाइड पे देख रहे हैं आपके जौफ, मुंह के अंदर का जो खाली हिस्सा होता है उसको जौफ कहते हैं। हल्क और मुंह के दरमियान खला को जौफ कहते हैं, यानी खला का मतलब जो खाली हिस्सा है मुंह का, उसको हम जौफ कहते हैं अरबी में। तो कुछ हरूफ जो हैं वो जौफ से भी अदा होते हैं और मुख्तलिफ जो अज़ा हैं मुंह के अंदर जो हिस्से हैं वहाँ से अदा होते हैं। आज के सबक में हम अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा सीखेंगे। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा क्या है कि जो मद का मतलब होता है खींचना, लंबा करना। तो किसी हर्फ को खींच कर लंबा करके अदा करने को मद कहते हैं। उस हर्फ को हर्फ मद्दा कहते हैं। ऐसा हर्फ जिसको लंबा करके पढ़ा जाए उसको हर्फ मद्दा कहते हैं। तो हर्फ मद्दा जो हैं यानी हरूफ मद्दा जो हैं वो 3 हैं। तो सबसे पहले है अलिफ मद। तो इसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा और इसको याद रखना है आप लोगों ने। और जब आप अपने सबक को याद करें जो आज हम पढ़ेंगे, जो सूरह पढ़ेंगे और सूरह फातिहा में भी, और इसके अलावा अपनी तिलावत में जो आप डेली की रूटीन की तिलावत करते हैं, तो उसमें आपने गौर व फिक्र करनी है। जो आज हम सबक पढ़ेंगे उसको आपने अप्लाई भी करना है अपने रूटीन के सबक में भी और अपने क्लास के सबक में भी। और उसमें आप अगर हो सके तो अपने जो पारे का सबक आप पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं रूटीन की, उसमें अगर आप इसको हाईलाइट कर लें या आप कोई निशान अंडरलाइन कर लें अलिफ मद्दा या जो भी हम आज पढ़ेंगे उसको, तो आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा और अच्छे तरीके से आप सीख सकेंगे। अलिफ मद्दा, जिस अलिफ से पहले ज़बर हो, जिस अलिफ से पहले ज़बर हो उसको अलिफ मद्दा कहते हैं। यानी कोई भी हर्फ है उसके ऊपर ज़बर है, उसके आगे अलिफ है, तो उसको अलिफ मद्दा कहेंगे हम। ये याद रखना आपने कि अलिफ खाली होता है, जिस अलिफ के ऊपर कोई हरकत हो या कोई अलामत हो वो अलिफ नहीं होता, वो हमजा होता है। ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह, जो हरूफ तहज्जी के मखारज के साथ साथ ही चलेगा इंशाल्लाह। तो हरफ मद्दा जो है अलिफ से पहले ज़बर होती है और वो हर्फ जो है वो अलिफ मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा क्या है? जिस वाव से पहले पेश हो, यानी वाव है, खाली वाव है, साकिन नहीं, खाली वाव है, उससे सॉरी वाव है और उससे पहले जो है वो पेश आएगी, तो उस वाव वाले हर्फ को वाव मद कहेंगे। ठीक है, मद का मतलब खींच कर लंबा करके अदा करना। तो हरूफ मद्दा जो है उनको कितना खींचना है ये भी अभी हम देखेंगे। या मद्दा, जिस या से पहले जेर होगी, या से पहले जेर होगी उसको या मद्दा कहेंगे। जैसे आप देखें दोनों चीज़ों का फ़र्क हम देखते हैं। सिंपल में है बा के ऊपर ज़बर है तो इसको बा ज़बर बा इस तरह नहीं करेंगे। बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, मीम ज़बर मा, फा ज़बर फा। और यही अगर अलिफ के साथ आएगा, जैसे आपके सामने है कि बा के ऊपर ज़बर है, बा ज़बर अलिफ बा, इसको अब हम खींच के लंबा करके अदा करेंगे। खींचेंगे कितना? 2 हरकत। अब इसको 2 हरकत कह लें या एक अलिफ के बराबर कह लें, एक ही बात है। 2 हरकत यानी डबल आप खींचेंगे। जिस तरह बा ज़बर बा पढ़ा है हमने, इसको बा ज़बर अलिफ बा, ता ज़बर अलिफ ता, ता मीम ज़बर अलिफ मा,
फा ज़बर अलिफ फा, इस तरीके से इतना लंबा करेंगे। बा ता मा फा, ब ता फा, इस तरह भी नहीं पढ़ना और बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करना। बा ता, इस तरह ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं खींचना, सिर्फ दो हरकत आपने खींचना है। अगर इसके लिए आप अपनी मुट्ठी बंद करें और एक एक करके अपनी उंगलियों को खोलें, दो उंगलियों को खोलें, खुली हैं तो बंद करें, बंद हैं तो खोल के, इस तरह आप इसको देख सकते हैं कि कितना हम खींचते हैं इसको। नॉर्मल जो स्पीड से आप अपनी उंगलियों को खोलें, बस इतना ही खींचेंगे, इससे ज्यादा नहीं खींचेंगे। और अब वाव मद्दा को देखें कि खाली पेश को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। खाली पेश को कैसे पढ़ा जाएगा और वाव मद्दा को कैसे, यानी पेश जो है वो वाव के साथ आएगी आगे, तो फिर उसको कैसे अदा किया जाएगा। बापिश बू है, बापिश बू, तापिश तू, मीम पेश मू, फापिश फू, बस इतना खींचेंगे। इसको बू तू इस तरह नहीं करेंगे, सिंपल पेश पड़ी जाएगी, एक हरकत खींचा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आगे वाव आ जाती है, जैसे बा पेश वाव बू, ता पेश वाव तू, मीम पेश वाव मू, फा पेश वाव फू, तो वाव साकिन से पहले पेश होगी तो उसको वाव मद्दा कहेंगे। वहां पर दो हरकत उस लफ्ज को हम खींच कर अदा करेंगे, इसको कहते हैं वाव मद्दा। अब है याय मद्दा। याय साकिन से पहले जेर होगी, या साकिन से पहले जेर होगी, इसको या मद्दा कहेंगे, या याय मद्दा कह लें या मद्दा कह लें। जैसे बाजिर बी है, इसको बी नहीं पढ़ सकते हम, इस तरह पढ़ेंगे तो ये गलती होगी, और ये हराम गलतियों में से गलती है। हमने देखा था पहली क्लास में, पिछली में, कि कुछ गलतियां जो हैं वो हराम गलतियां होती हैं। ठीक है, लहने जली की जो गलतियां हैं वो हराम गलतियां होती हैं। तो बाजिर बी, ताजिर ती, मीमजर मी, फाजिर फी, इतना ही खींचेंगे इसको। लेकिन अगर इस बाग के नीचे जेर के साथ जाए साकिन आ जाती है तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे इसको। बाजेर या बी, ताजेर या ती, मीमजेर या मी, फाजेर या फी, तो दो हरकत तक इसको भी खींचेंगे। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इसको हम दो हरकत ही खींचेंगे, दो से ज्यादा भी नहीं करेंगे, क्योंकि दो से ज्यादा करेंगे तो वो और मद्दात वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो उसकी तरफ चले जाएंगे। यहाँ ये इन मद्दात को मद्दे असली भी कहते हैं। तो बहरहाल अभी आप इतना याद रखें कि ये अलिफ मद, वाव मद, या मद जो है, इसको आपने इन हरूफ को दो हरकत ही खींचना है। जैसे अब यहाँ पर आप देखते हैं अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, इस सूरह फील में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम इसको अदा करेंगे। और आपको पहचान होनी चाहिए कि कहाँ पर अलिफ मद्दा है, कहाँ वाव मद्दा और कहाँ पे या मद्दा हो रही है। ये कलरिंग की हुई है आपके सामने। अलिफ मद्दा ग्रीन कलर में जो है, और वाव मद्दा ब्लू कलर, और या मद्दा पिंक कलर में। आपको जो हरूफ पे भी वही कलर है और इसकी साइड पे भी वही कलर है। इसकी तिलावत सुनते हैं और फिर इसको इस पर गौर करते हैं कि कैसे इनको अदा किया जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف मأकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये हम देख रहे हैं कि असहाब में अलिफ मद है, तो इसको हम असहाब नहीं पढ़ सकते, या ना ही असहाब ज्यादा लंबा कर सकते हैं। इसको दो हरकत ही हम
खींचेंगे, अस्हाबिल फील। अब फील जो है यहाँ पर या मद है कि या साकिन से पहले फा आ रही है, तो ये या मद है यहाँ पर, इसको हम दो हरकत खींचेंगे। लेकिन चूंकि आगे वक्फ आ रहा है, आयत का वक्फ है, आयत आ रही है, तो थोड़ा सा अगर आपको तिलावत में लगा कि मैंने एक्स्ट्रा खींचा है, तो ये भी रूल हम इंशाल्लाह देखेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा खींच सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये हम वाव मद्दा देख रहे हैं, सॉरी या मद्दा देख रहे हैं, तो या मद्दा को हम दो हरकत ही खींचेंगे। आगे फिर फी में भी या मद्दा आ रही है, और तजलील में भी या मद्दा है। अबाबील में देखें कि बा जो है वो अलिफ मद्दा, ग्रीन कलर आपको शो हो रहा है, और बी जो है अबाबील का वो या मद्दा है। तरमील में भी वही या मद्दा, या साकिन से पहले जेर आ रही है। बिहिजारा में अलिफ मद्दा है, और इसके बाद सिज्जील में भी या मद्दा, और माकूल, कूल में देखें वाओ साकिन से पहले पेश है, तो वाओ साकिन से पहले पेश आएगी, तो इसको वाओ मद्दा कहेंगे। ये पहला मखरिज था हमारा। अभी जो है अ, दूसरा मखरिज हम देखते हैं। दूसरा मखरिज है हमारा हलक। हलक का जो हलक गले को कहते हैं, हलक गले को कहते हैं। ये देखें आपके सामने स्लाइड। हलक जो है उसके तीन हिस्से होते हैं। आपने पीछे जो हमने स्लाइड देखी थी उस पर अगर आप गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हलक के तीन हिस्से हैं। अब उन तीन हिस्सों को हम देखें कि कौन कौन से ये हिस्से हैं, और कौन से हिस्से से कौन से हरूफ जो हैं वो अदा होंगे, यानी उनका मखरज जो है ना हलक है, तो हलक का कौन सा हिस्सा कौन से वर्ड के लिए है। इब्तदाई हल्क है, यानी शुरू का, हल्क का शुरू का हिस्सा। हल्क के शुरू के हिस्से से गैन और खा, ये दो हरूफ अदा होते हैं, गैन और खा। गैन और खा का मखरज इब्तदाई हल्क है, यानी हल्क का शुरू का हिस्सा। ये दोनों हरूफ हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। जुबान के पिछले हिस्से को ऊपर की तरफ बुलंद करते हुए मोटी आवाज में आप खा और गैन अदा करते हैं। नुक्ते वाले आपने याद रखने हैं, दोनों नुक्ते वाले हरूफ हैं, खा और गैन, ये इब्तदाई हल्क से अदा होते हैं। ये देखें, ये आपके सामने आ गया, तीन हिस्से, गैन और खा पहला हिस्सा इब्तदाई हल्क, और आगे है आइन और हा, वो आगे स्लाइड आती है अभी, और उसके बाद इंतहा, ये वस्ते हल्क है आइन और हा, और इंतहाई हल्क यानी लास्ट हिस्सा जो है वो है हमजा और हा। तो इसकी जो है ना हम प्रैक्टिस करें, अगर हरकत के साथ इसकी अदायगी की मशक करते हैं, तो इस तरह जो है ना वो अदा करेंगे। हमजा जबर गैन, अब हम इसके लिए गफूर, इसकी वाव मद भी है। ये देखें, गाशिया गुरफा या गाशियतुन गुरफतुन गुफरानक या गुफरानक। अख, ये इसका जो है ना मखरज है अख, गले की खराश के साथ इसकी अदायगी होती है। अख, खबीर, खजूला, खुशूआ, यख्तफु। ठीक है। दूसरा है हिस्सा हल्क का, वस्ते हल्क, दरमियान वाला हिस्सा। यहाँ से आइन और हा अदा होंगे। ये दोनों हरूफ हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। जुबान पीछे हल्क की तरफ मजबूती से ले जाते हुए बारीक आवाज में इनको अदा करेंगे। आइन हा, हा अदा करते हुए गले से हवा निकलती है, तो ये अदा होगा आइन हा, आइन हा। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, आइन हा की।
یہ آپ کے سامنے سلائیڈ میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کہاں سے اس کی آواز آپ نے نکالنی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ہے نا حرکات کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آئین حمزہ زبر آئین، آ حمزہ کو آپ نے سمپل ادا کرنا ہے، آئین کو حلق سے ادا کرنا ہے، اس کی ذرا اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ آصف عالیت معہ جعلنا، اسی طرح ہا کی ہے حمزہ زبر ہا، اح حل والروح نشرح یحسب، اور انتہائی حلق سے دو حروف ہیں حمزہ ہا، یہ انتہائی حلق جو سینے کی طرف جو ہمارا حلق کا حصہ ہے، یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے یعنی سینے کی طرف جو حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں حمزہ ہا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے سلائیڈ میں آخری حصہ جو ہے حلق کا، وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہو رہا ہے۔ تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں حرکات کے ساتھ۔ حمزہ زبر حمزہ، انت ائتنا اہلہ انذرتہم ربہ علیہ ہاجروا الیہا، یہ ہا کی آواز نکلتی ہے سینے کی طرف سے۔ تو اس کی پریکٹس جو بہترین پریکٹس جو ہے نا وہ سورہ الشمس میں زیادہ دفعہ یہ ہا آئی ہے، تو اس لیے اس کی پریکٹس یہاں سے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابتدائی حلق، وسط حلق اور انتہائی حلق والی جو ہا ہے حروف ہیں ان کی ادائیگی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو یہ اس کے حروف حلقی جو ہیں ان 6 حروف ہیں یہ، اور ان 6 حروف کی یہاں پر پریکٹس ہے اچھے سے۔ آج ہم نے حروف حلقی دیکھے ہیں، تو ان کو دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے سلائیڈ میں کلر کیا ہوا ہے حروف حلقی کو، یہ آپ نے اچھے سے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ ہا حروف جو خا ہے ابتدائی حلق کے حروف خا اور غین بلو کلر میں، ہا وسط حلق کے حروف ہا اور آئین یلو کلر میں، اور ہا اور حمزہ انتہائی حلق میں سے ہیں تو یہ گرین کلر آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔